क्वेश्चन नंबर 224 के रघुराम कृष्ण राजू। माननीय सदस्य बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। I had gone through the detailed reply given by the Honorable Minister, sir. It is really exhaustive, and I thank the Honorable Minister for his detailed reply. And in this regard, I would like to put a question on the insurance. Though agriculture is in the state list, though not in the concurrent list, the Honorable Prime Minister, through his Prime Minister Fasal Bima Yojana, he has come with an insurance scheme of 50% premium which would be paid. But some states in Andhra Pradesh, there were initiatives wherein the balance 50% it is being paid by the state in addition to the center. But like Ayushman Bharat, with the concern by the Honorable, showered by the Honorable Prime Minister on the Kisan, which is the backbone, is there any proposal to consider to pay the full insurance premium to the farmer like Ayushman Kisan, something like that, which would be good? Is there any proposal in this regard? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य का जो सवाल था ये किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए उन्होंने उठाया था और बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के रिस्क को मैनेजमेंट करने के उम्दा आशय के साथ 16 में प्रस्तुत किया था। ये 85 से चलती हुई एक योजना है। उस योजना में कई परिवर्तन अभी तक हो गए हैं। उनमें से अभी की ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम उपयोग में ले रहे हैं। कल ही करीबन 12 राज्यों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और 20 से ज़्यादा राज्यों के वरिष्ठ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की साथ हमारी बैठक थी। हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय तोमर जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। उसमें भी इस विषय को लेकर एग्रीकल्चर मिनिस्टरों से और अधिकारियों से हमने उनकी राय ली है। आपका उद्देश्य है कि पूरा प्रीमियम केंद्र सरकार की ओर से सजेस्ट किया जाए। ऐसे कई सुझाव एग्रीकल्चर कंसर्न स्टेट के मिनिस्टरों की ओर से और कई माननीय सांसदों की ओर से पिछले दौर में हमारे मोहन भाई कुंडारिया जी ने भी इसी इश्यू को लेकर अपने सुझाव दिए थे। इन सारी चीज़ों को लेकर हमारा मशवरा चल रहा है। इसमें अभी ये तय नहीं है कि 100% केंद्र सरकार इसको स्वीकृत करेगी, मगर इसको मॉडिफाई करने की एक प्रक्रिया चर्चा में जरूर है। माननीय सदस्य। Thank you so much, Mantri ji. And recently, government has increased the minimum support price for some 16 crops, which is a very welcoming step. In this regard, MS Swaminathan committee has given some recommendations wherein, in the formula that is adopted, the labor input by the family of the farmer also has to be taken into consideration, which would further improve the minimum support price like a kind of a remunerative price, which is a very good suggestion extended by Swaminathan committee. Is the government considering in the interest of the farmer the recommendation made by Dr. M.S. Swaminathan? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो पूछा कि किसानों के फैमिली का जो श्रम का मूल्य है ये इसकी लागत के साथ जोड़ना चाहिए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान में लागत इसकी इवेल्यूट करने की जो सिस्टम है उसमें पूरे किसान परिवार का जो श्रम मूल्य होता है उसको शामिल कर दिया गया है और ये सजेशन है वो स्वीकृत कर दिया गया। श्रीमती सुप्रिया सुले। जिस राज्य से मैं आती हूँ सर, जिस राज्य से मैं आती हूँ उसका राज्य का जो सर्वे आया है उसमें ऐसा कहा है कि रोज़ 8 किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। और जो उत्तर आया है आज सरकार की तरफ से, दिस इज़ द गवर्नमेंट डेटा आई एम कोटिंग, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इकोनॉमिक सर्वे, यू कैन वेरीफाई इट। इसका जो जवाब आया उसमें कहा है कि आई नो इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट,
but the government has reorientation of agriculture sector by focusing on an income-centric approach against an earlier production-centric approach. This focuses on achieving high productivity, reduced cost of cultivation. My pointed question is, with petrol, diesel prices going up, and nothing specific in the budget, how are you going to reduce the cost of cultivation, increase the income of this, and reduce farmer suicides, not just in Maharashtra and Delhi, because my state is highly drought affected. So my specific question is, even if it is a state subject, which I'm aware, what specific intervention this government is doing? Because in the UPA government, under the leadership of Mananiya Manmohan Singh ji, there was a 70,000 crore loan waiver given. So do you intend to do something similar like this in the interest of my state of Maharashtra? Thank you, sir. ऑनरेबल सदस्य ने बहुत ही अच्छा एक सवाल उठाया है और उन्होंने चाहा कि लागत को कम करने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, और उन्होंने जिक्र भी किया कि डेप्ट वेवर का एक बड़ा काम उनकी सरकार के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रेजिम में किया गया था। हम सबको इनका पता है और हम इनका बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, मगर हम आपके संज्ञान में ज़रूर इतना इस सवाल के जवाब के उपलक्ष्य में बताना चाहते हैं कि हम पूरे देश के किसानों को जिन्होंने ब्याज लिया है उसको ब्याज मुक्त करना ऐसा नहीं, मगर प्रत्येक किसान को हर साल 6,000 रुपया इनके अकाउंट में डालने का प्रयोग कर रहे हैं और 11,000 करोड़ रुपया पर एनम किसानों को मिलने वाला है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हुई कि पहले कुछ राज्यों ने इसमें थोड़ा संकोच करते थे, मगर कल ही सारे राज्यों के एग्रीकल्चर मिनिस्टरों ने अपनी उसमें प्रसन्नता जाहिर की है और उनके ओर से डेटा भेजने का भी शुरू कर दिया है। अब रही उनकी मूल बात कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए माननीय सभापति इस सरकार के द्वारा क्या किया गया। हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी ने ये जो बात रखी थी डबल फार्मिंग की, उसका मूल आधार था स्कीम फॉर कॉस्ट रिडक्शन, स्कीम फॉर रिस्क मिटिगेशन, स्कीम फॉर प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ाने के लिए और स्कीम फॉर राइट प्राइसेस। तो उसकी लागत कम हो, उसके रिस्क का मैनेजमेंट हो, उसको सही दाम मिले। इसी उपलक्ष्य में जो कॉस्ट रिडक्शन के लिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड करके एक बहुत व्यापक कार्यक्रम पूरे देश में इन्वॉल्व किया है। इसके उपयोग से किसान अपने खेत में ज़रूरी जो है उतना फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, जितनी मात्रा में करना चाहिए वो करें। उसी फर्टिलाइज़र को 100% नीम कोटेड करके यूज़ करने का हमारी सरकार ने प्रावधान कर दिया। और इसके चलते पहले के समय में वो यूरिया लेने के लिए किसानों को लाठियाँ खानी पड़ती थी। आज पूरे देश में कहीं से भी यूरिया की डिमांड के लिए कोई कंप्लेन आ नहीं रही है, उसको समय से यूरिया मिल रहा है। और ये नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से उसकी मात्रा भी कम उसको यूज करनी पड़ती है और नीम कोटेशन से वो ज़्यादा देर तक अपनी फर्टिलिटी भी खेत में बनाए रखता है। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के तौर पर क्रॉप मोर ड्रॉप वाला जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसके चलते हम किसानों को सहायता देते हैं माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए। और इसके बाद मिशन फॉर ऑर्गेनिक एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, खास करके नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं वहाँ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और उसको प्रोत्साहित करने से भी एग्रीकल्चर की कॉस्ट कम आती है। हर पेड़ पे मेड़ लगाने की एक हमने योजना सरकार की ओर से लागू की है। परंपरागत कृषि विकास योजना की तहत भी हम जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इन सारी योजनाओं को किसान अपने खेत में लागू करे तो अवश्य ही इनकी लागत में कटौती होती है। मनमोहन सिंह महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कर्जा माफी की जो घोषणा की गई थी 75,000 करोड़ की, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ था और उसमें क्या क्या विसंगतियां ऑडिट रिपोर्ट में आई, और जिस वर्ष कर्जा माफी हुआ क्या उसके अगले वर्ष आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई थी या कमी आई थी, ये मैं जानना चाहूँगा।
माननीय अध्यक्ष श्री, वैसे कर्जा माफी वाला इश्यू इसके रिलेटेड नहीं है, मगर राधा मोहन सिंह जी तो मेरे सीनियर मिनिस्टर भी हुआ करते थे और मैं इनके संरक्षण में इस हाउस में जवाब दिया करता था। मगर उनकी ये बात सही है कि कर्जा माफ़ी करने के बाद के वर्ष में भी आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई थी, ये रिकॉर्ड पे था। और मैं मानता हूं साहब कि किसानों की आत्महत्या उसको राजकीय रंग से देखने की जरूरत नहीं है। चौधरी जी, आप चौधरी जी का, माननीय मंत्री जी आप चौधरी जी का जवाब मत दो, आप राधा मोहन सिंह जी का जवाब नहीं, नो क्योंकि विपक्ष के नेता है तो इसका संज्ञान मैंने अलाउ नहीं किया ना आपको, मगर आप राधा मोहन सिंह जी का जवाब सर तो ये, और उसमें उन्होंने ये भी एक जिक्र किया था कि जो फिर ऑडिट हुआ था तो उस ऑडिट में ऐसे मामले भी सामने आए थे कि उन लोगों का कर्जा माफ हो गया था जो किसान ही नहीं थे। श्री गौरव गोगोई। अध्यक्ष महोदय, सदन और देश के किसानों का आपका संरक्षण चाहिए। 5 पेज का ये उत्तर है। 5 पेज के उत्तर में जो प्रश्न है किसान एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट बैठे। माननीय सदस्य, आप सदन में पहली बार तो आए, लेकिन प्रश्न काल में से खड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना? ओके, अब आप पूछिए। अध्यक्ष महोदय, 5 पेज के उस उत्तर में जो प्रश्न किसान आत्महत्या के ऊपर है, 5 पेज में एक भी आंकड़ा नहीं है कि किसान की आप तो आत्महत्या। प्रश्न पूछो ना माननीय सदस्य। वही मैं पूछ रहा हूं कि किसान की आत्महत्या देश में कितनी हुई है, उसका यहाँ पे लिखा ही नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं क्योंकि ये प्रश्न है किसान आत्महत्या नियंत्रण की, तो सदन को कैसे पता चलेगा कि नियंत्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब मंत्री जी छुपा रहे हैं कि देश में कितनी आत्महत्या हो रही है। अभी अभी उन्होंने खुद कहा है कि वहां पिछले यूपीए सरकार के बाद वो जो लोन वेवर हुआ उसके बाद किसान की आत्महत्या की संख्या बढ़ी है, तो उसका यहाँ पे विस्तार क्यों नहीं है? आज यहाँ की केंद्र सरकार 5 पेज के उत्तर में देश के किसान की आत्महत्याओं को नजरअंदाज कर रही है, उसका डेटा नहीं रख रही है। कितने किसानों को पीएम किसान गया है उसका रिकॉर्ड है, किसान आत्महत्या कितनी है उसका रिकॉर्ड आज इस देश सरकार के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जवाब के जो हमने दिया है छपके उसमें ही लिखा हुआ है और आत्महत्याओं के बारे में सारे डेटा इस में लिखे हुए भी हैं और 15 के बाद ये डेटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट की ओर से जो प्रकाशित होता है उसी के आधार पर, क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो से जो इसका प्रकाशन होता है उसके आधार पर हम कृषि विभाग के जरिए हम इधर रखते हैं। 15 के बाद का हमारी जानकारी में जो है वो राज्यों के साथ उनका कंसिलेशन चल रहा है, तो इसके चलते राज्यों से ये डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, वो प्रकाशित नहीं हुए हैं। सो 15 के पहले के हैं और माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, आधार पर हमने बताया था कि आत्महत्या की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन